योगाचार्य श्री ओम प्रकाश मस्करा जी द्वारा संकलित गीता के मुख्य मुख्य श्लोकों का संकलन गीता सार के नाम से प्रकाशित हुआ है। ये वेद प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से 5000 पुस्तकों को हमारे साधु समाज वर्ग के लिए उपलब्ध कराया गया है। हम वेद प्रचार ट्रस्ट और श्री ओम प्रकाश मस्करा जी के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। अलग अलग संस्थानों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के हजारों नहीं लाखों पुस्तक हिंदू समाज में बांटने के लिए उपलब्ध कराए गए। कई संस्थाएं अपनी सारी व्यवस्था लगाकर और समर्पण भाव से समाज में श्रीमद् भागवत गीता के प्रति जागृति फैलाने के लिए उत्सुक है। इसी क्रम में हमारा ये अगला प्रयास है जो पद्यानुवाद फॉर्म में दिया गया है और ये गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा ही संकलित किया गया है, जो हमारे कल के प्रोग्राम में यानी 7 दिसंबर 2026 को होने वाले 5 लाख कंठों द्वारा गीता पाठ महोत्सव का एक हिस्सा है। धन्यवाद। महामिलनेर জন্য ডাকা হচ্ছে সমস্ত সনাতনী ভাই বন্ধুদের। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সবার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, মানব জীবনের যত প্রশ্ন উত্থান পতন সমস্ত শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মধ্যে নিহিত আছে। বর্তমান ভারতবর্ষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে যে ভেদাভেদ, আমাদের মধ্যে যে মতানৈক্য, আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, একমাত্র শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে কেন্দ্র করে আমরা একতা। তারই আহ্বান জানানো হচ্ছে। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সবাই আসবেন। 3 লাখ লোকের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে আমাদের হিসাব অনুসারে, প্রায় 5-এ পৌঁছে। মসজিদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মন্দির হবে, মসজিদ হবে, তাতে কোনো আমাদের কোনো বাধাও নাই, আপত্তি নেই। খালি বাবরিটার নামটা চেঞ্জ করলে ভালো হতো। এই স্বাধীনতার পরে 1947 সালের পরে আমাদের কতগুলো মসজিদ ছিল, এখন কত হাজার মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে। কত মন্দির ছিল, কত হাজার মন্দির তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের আপত্তির কিছু নেই। 26-এর আগে এই রকম ধরনের হিন্দুদের মধ্যে জাগরুকতা আসছে, কি বলবেন, এটা কি কিছু প্রভাব পড়বে? না, এটা তো হিন্দুদের মধ্যে জাগরণে না, হিন্দুরা যে আমাদের যে আমাদের মধ্যে যে ভেদাভেদ সেগুলো দূরীভূত হয় খুবই দরকার। বর্তমান একতাবদ্ধ হওয়া দরকার। একতাবদ্ধ বিচ্ছিন্ন হলে যা হয় তা আমাদের ভারতবর্ষ যুগে যুগে পরাধীন হয়েছে, একমাত্র এই কারণেই হয়েছে। তার জন্য একতাবদ্ধ সনাতনী ভাইদের হওয়ার জন্য আহ্বান। সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা খালি আমাদের সবার মন্দিরে আছে, পঠন পাঠন নয়। গীতার মধ্যে যে বিষয়বস্তু আছে, গীতার মধ্যে যে প্রেরণা আছে, সেটাই আপনাকে যুব সমাজ একদিন জেগেছিল আমাদের শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে কেন্দ্র করে। তার জন্য শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে যুব সম্প্রদায়কে বেশি আহ্বান জানিয়েছে। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভ্রষ্টাচার, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দৈনতা, শারীরিক মানসিক সমস্ত মত মতের মিলন হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত। আগামীকালের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ নিয়ে কি বার্তা দেবেন? আমরা সমস্ত সনাতনী মা, ভাই, বোন, রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। আগামীকালের এই বিরাট কর্মযজ্ঞকে ঘিরে বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন যারা হিন্দু সনাতনী প্রচারক রয়েছে, তারা কি সবাইকে আমরা সবাই এসেছেন ভগবত গীতাকে কেন্দ্র করে, সমস্ত শ্রেণীর মানুষ এসেছেন। এটাই আমাদের বড় প্রাপ্তি। তারা কিন্তু গীতা বিতরণ করছে মানুষের কাছে। দেখেছে একমাত্র কিছু সাধু সন্ন্যাসী, আমরা কিছু সাধু সন্ন্যাসী মানুষ আসছে, এটা আমাদের বিরাট প্রাপ্তি।
তবে এই যে গীতার বিতরণ এবং মানুষের কাছে আরো পৌঁছে দেওয়া, এটাকে কিভাবে দেখছেন? এটা তো মানুষে আমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে গীতা পাঠ ঘরে ঘরে এই স্লোগান নিয়ে প্রত্যেকটা বাড়িতে পৌঁছে যাবে। हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे बागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं, रामदेव बाबा जी रहेंगे, साध्वी तमरा जी रहेंगी और इस पूरे आयोजन के जो मेन कर्ता धर्ता हैं हमारे गयानंद महाराज जी स्वामी, जिनका आप लोग भी नाम सुने होंगे। उनको गीता मनीषी का उपाधि भी पूरे भारतवर्ष में गयानंद महाराज जी को ही मिला है। और उनके जो नीचे है आयोजक में पद्मश्री सनातन संस्कृति संसद हमारा जो समिति है उनके अध्यक्ष हैं। सारा उन्हीं के देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। पूरी से वैष्णो देवी से केदारनाथ से सभी जगह से साधु लोग आ रहे हैं। और उन लोगों को जिस तरीके से बोला गया है कि 5,000 से ज़्यादा साधु जो हमारा यहाँ आज रात तक गए थे यहाँ पर हम देख रहे हैं गीता तो देखिए हिंदू धर्म का सबसे परम गीता हमारा गीता के हम लोग कसम खाते हैं। तो गीता का कसम क्यों खाते हैं? क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गीता को ही हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और गीता जो है हम लोग जो दे रहे हैं युवाओं को प्रेरणा मिले इससे, इस कार्यक्रम के प्रति और चेतना जगे युवाओं में और अधिक से अधिक युवा आए और हिंदू धर्म सनातन धर्म बोलिए चाहे हिंदू धर्म बोलिए उसमें अपना योगदान दें। और संस्कार जो होता है इस तरह का कार्यक्रम करने से ही युवाओं में आएगा। हम लोग भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो कम से कम हिंदू धर्म के लिए तो हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और बंगाल को अगर आपको बचाना है तो भगवा लहराना होगा। নেন। দেখুন, এটা আমাদের আবেগের বিষয়, আমাদের অস্মিতার বিষয়, এটা আমাদের রক্তের বিষয়। এখানে না তো কোনো রাজনীতি আছে আর না তো কোনো কেউ কাউকে বিষয় আছে। আমাদের পিতৃকুল মাতৃকুল বাপ ঠাকুরদা ঋষিমুনির যে দেশ, তাদের রক্তে গীতা, তাদের রক্তে সনাতন রয়েছে। এখানে কোনো রকম রাজনৈতিক লেশমাত্র নেই। সনাতনী মানুষ সবসময় এত বড় তাদের একটা আয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেকেই গর্ববোধ করছেন। পাঠের আগে এর পরিবেশ কীরকম রচনা হয়েছে সেটা দেখার জন্য আজকে প্রায় 10,000 মানুষ মাঠের মধ্যে এসেছে। তো আমরা তো সকাল থেকেই দেখছি প্রচুর মানুষের আনাগোনা হচ্ছে, অনেক মানুষ আসছেন, প্রচুর গাড়ি করে করে মানুষ আসছেন, বাসে করে মানুষ এসছেন দেখবার জন্য। এই যে একটা নিজের জিনিস, সবাই এটা মনে করছে এটার অন্য কিছু না, এটা আমার কোনো কিছু হচ্ছে, এটা আমার একটা নিজস্ব অস্মিতা, এই বিষয়টাকেই মানে সবাই নিজস্ব বোধ করছে। তার টানে মানুষ আসছেন, আরও কালকে আসবেন। এটা তো সত্যি গর্বের কথা। সাধুদের জন্যই কেবলমাত্র মঞ্চের ব্যবস্থা আছে। 3টি মঞ্চ রচনা হয়েছে। একটা মূল মঞ্চ হচ্ছে পার্থসারথী মঞ্চ, যেখানে প্রায় 200 সংখ্যক সন্ত থাকবেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সন্তরা আসছেন। আমাদের গীতা মনীষী জ্ঞানানন্দজি মহারাজ, আমাদের বাগেশ্বর ধাম, তারপর সাধ্বী রীতাম্বরা, এরকম রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইস্কন, কাঠিয়া বাবা পরম্পরা, গৌরীয় মঠ, বিভিন্ন পরম্পরা সন্তরা থাকবেন। এবং প্রায় 8টি রাজ্য থেকে সন্তরা আসছে, তো তাদেরও সব এখানে থাকবেন। এবং বাকি আরও প্রায় 2000 সন্ত আসছেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা স্বাগত করছি। এবং তাদের জন্য মূল মঞ্চের দুদিকে 2টি মঞ্চ রচনা হয়েছে। একটি মঞ্চের নাম হচ্ছে শ্রীমন মহাপ্রভু মঞ্চ, আর একটি হচ্ছে শঙ্করাচার্য মঞ্চ। এখানেও সাধুরাই খালি থাকবেন। আর গভর্নরজির আসার কথা আছে, মাননীয় আমাদের মহামহিম গভর্নর, তিনি আসবেন, তিনি মূল মঞ্চে। ওটা দিয়ে আমাদের কোনো অত মাথা ব্যথা নেই, কারণ কে কার মসজিদে নিজস্ব জমিতে নিজস্ব তাগিদে করতেই পারে। আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ, আমাদের সংবিধান সকলকেই তার মন্দির মসজিদ গির্জা উপাসনার অ্যালাউ করে। একটাই আপত্তি আছে, সেটা হচ্ছে বাবর নাম, যেটা যার সঙ্গে আমাদের সনাতন ধর্মের অনেক মা বোনেদের রক্ত এবং তাদের সম্মানহানির ইতিহাস তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। অনুরোধ করছি যে এরকম ধরনের একটা বিষয়কে খুঁচিয়ে তুলে যাকে বলে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি, একটা যাকে বলে কালো দিককে স্মরণ না করিয়ে
আগামী প্রজন্মের কাছে আব্দুল কালামের মতন এরকম বিখ্যাত মানুষের নাম জড়িত কোনো সংস্থান তৈরি হোক, মসজিদ হোক, যেখানে মানুষ এসে তার সম্পর্কে যখন জানতে চাইবে আগামী প্রজন্ম, আজ থেকে 100 বছর 200 বছর পরে, তখন তারা গর্ববোধ করবে। এরকম একটা ইতিহাস যদি রচনা করবার ইচ্ছাই হয় কারোরই, সে হুমায়ুনজিরই হোক আর যারই হোক, তিনি যেন এই দিকে একটু চিন্তা করেন। আর যদি বাবর নামই করতে হয়, আমরা সাধু সন্তরা এর প্রতিবাদ করছি, আগামী দিনে আমরা আইনি পথে এর প্রতিবাদ করব। কালকে এত বড় একটা মহাযজ্ঞ, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এখান থেকে কি বার্তা দেবেন হিন্দু সনাতনীদের? সনাতন ধর্মের মানুষ মানে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ, এখানে যেরকম শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, তারপরে আমাদের লামা, আমাদের দার্জিলিং থেকে অনেক লামা সাধু এসেছে। লামা অর্থাৎ সনাতনী পরম্পরা, যেটা অরিজিন ভারতবর্ষের রক্তে যাদের আমরা সনাতনী, প্রত্যেক, এমনকি মুসলমান সমাজেরও অনেক প্রতিনিধি কালকে আসবে। এই সকলকে কাল স্বাগত। আমরা এখানে ভারত আত্মা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাকে সমচ্চারিতভাবে পাঠ করব এবং ভারতীয় অস্মিতার এখানে গর্ববোধ করব। এইটাই হচ্ছে আমাদের কালকের উদ্দেশ্য। বিবিধের মধ্যে যে ঐক্য, সেই ঐক্যের মঞ্চ হচ্ছে কালকের গীতা পাঠের মঞ্চ। गीता का ये आयोजन जो 7 दिसंबर 2025 रविवार को 9 से 2 बजे तक का है, उसमें 5 लाख आदमी एक साथ गीता का पाठ करेंगे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये गीता का प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि हर इंसान को गीता के बारे में जानकारी हो, और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़कर हर इंसान स्ट्रेस फ्री, शांति, आनंद की अनुभूति कर सकता है। हमारे साथ स्वामी प्रदीप्तानंद जी, निर्गुणानंद जी हैं, और दूसरे बहुत बड़े संत हम लोगों के साथ हैं। और अभी हमारे ज्ञानेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, पीतम्बरा जी, दीदी और ये रामदेव बाबा, ये लोग सब आ रहे हैं। इनका संचालन गीता महर्षि ज्ञानानंद जी महाराज आ रहे हैं। हमारी ये ऑफिस कार्यालय जो बनी हुई है, वो 2 महीना से हम इनको किसी मतलब व्यवहार करने के हिसाब से इनको दे रहे हैं। यहाँ पर सभी संत लोग आ रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, और हम लोगों की प्लानिंग हो रही है कि कैसे इसको कार्यक्रम को सबसे अच्छे से अच्छे सक्सेसफुल बनाएं। नहीं, ये हम लोगों की जागृति है कि यहाँ पर जो है जिस हिसाब की वातावरण हुई हुई है, इसको हम लोग हिंदू में जागृति पैदा करने के लिए ये कर रहे हैं, ताकि हिंदू जागृत होकर, संगठित होकर कुछ भी जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोक सकें। देखिए, देश के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो 5 लाख गीता कंठ पाठ हो, जिसमें बहुत सारे तपस्वी आ रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, और इनके साथ में और भी तपस्वी लोग आ रहे हैं, जैसे साध्वी जी आ रही हैं। और ये पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म, जो धीरे धीरे भारत में सनातन धर्म पिछड़ा जा रहा था, वो सनातन धर्म अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग ये इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे कि 5 लाख गीता कंठ स्वर एक साथ में हुआ, और जिसमें योगदान विशेष करके कार्तिक महाराज जी का है, निर्गुणानंद महाराज जी का है, जिन्होंने ये इतनी अच्छी सोच लाई। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आके सिर्फ हिंदू ही नहीं, यहाँ पे मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये धर्म है भारत का। ये धर्म भारत सिखाती है कि हम लोग एकता, एक मंच पे एक तरह से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह से एक तरह से होता है। और ये गीता स्वर ये इतिहास है भारत के लिए और हमारे लिए भी, और हम लोग चाहेंगे कि इसको संपूर्ण रूप से, सफल रूप से करें। और मैं जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में आएँ। ये धर्म है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और अपने बच्चों को गीता क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म से हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में भारत में क्रिश्चियन लोग अपने धर्म का जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, हमें भी अपने भारत में हिंदुत्व धर्म की प्रचार करना है। गीता और महाभारत, रामायण का जो उसकी विशेषता है, जो रामायण हुआ उसका भी विशेषता है, और जो महाभारत हुआ उसका भी विशेषता है, और जो अब गीता हो रहा है उसकी भी विशेषता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को लेकर हमारे यहाँ पे ब्रिगेड मैदान में जो गीता पाठ हो रहा 5 लाख एक साथ में, उसमें उपस्थित हो। কি বলবেন, আপনাদের কিরকম ব্যবস্থাপনা এখানে আয়োজন করেছেন? দেখুন, আমাদের এত কম সময়তে এই ব্রিগেড মাঠ, যে পুরো দেখবেন ব্রিগেড মাঠ একদম নোংরা ছিল,
এটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। এই অত বড় বড় ঘাস ছিল, এটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপরে আমরা যে বাইরে থেকে 2000-এর বেশি সাধু সন্ত আসছেন, তাদেরকে সেফ জোন করে একদম আলাদাভাবে ওনাদেরকে রাখা, ওনাদের কোনো কষ্ট না, ওনাদের কোনো অসুবিধে না হয়, খাওয়া দাওয়া থেকে নিয়ে জলের ব্যবস্থা, টয়লেটের ব্যবস্থা, তারপরে ঘরের ব্যবস্থা। এই শীতকালে বুঝতে পারছেন ঠান্ডা লাগছে, তাদের কম্বল থেকে নিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা আমরা করেছি। তার সঙ্গে আমরা দেখছি বাইরে থেকে যারা সাধু সন্ত এসছেন তারা খুবই খুশি। এখানে এসে এই ব্যবস্থাটা দেখে ওনারা বলছেন যে না, এই ব্যবস্থাটা এখানে অসম্ভব জিনিসকে আমরা সম্ভব করতে পেরেছি। তার সঙ্গে আমরা কালকে যে গীতা পাঠে যারা আসবে তাদের জন্য দেখুন, এই গীতা পাঠ সবার জন্য, যে ওনাদের কোনো গীতা পাঠ পড়তে যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সবার জন্য এই বই তৈরি করা হয়েছে। তার সঙ্গে তাদের জলের বোতল, তাদের টিফিনের ব্যবস্থা, সব কিছু ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণরূপে করেছি। কিছু কিছু অসুবিধা হয়েছে, সে অসুবিধাকে গীতা পাঠের যে টিম আছে, পুরো অর্গানাইজার টিম, আমরা সবাই মিলে এই ব্যবস্থাকে ঠিকঠাক করে পুরো ব্রিগেড মাঠকে এমনভাবে করা হয়েছে যে কালকে আমরা এখানে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে, তারপরে আমরা মেডিসিনের ব্যবস্থা করেছি, ডক্টরের ব্যবস্থা করেছি, যে যদি কোনো ইমার্জেন্সিতে কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে। ঠাকুর না করুক যে অ্যাম্বুলেন্সের ইউজ আমরা করি, কেন ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ আছে যে এইসব আমাদের দরকার পড়বে না। সবাই অনেক শক্তি নিয়ে, মনে অনেক পাঠ আর শক্তি নিয়ে এখানে আসবে। আর সবাই একদম সম্পূর্ণ 9টা থেকে 2টো আমাদের যে গীতা পাঠ আছে, ওই গীতা পাঠ সম্পূর্ণরূপে সম্পূर्ण করে এখান থেকে যাবে, এই कामना করছি। देखिए, बाबरी मस्जिद का उद्घाटन तो नहीं कर पाए, उनके चेली चमुंडे कुछ ईंट वीट लेके रखे हैं, लेकिन सरकार और उनके ही सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया, जैसा कि आप लोग देखे हैं। और हुमायूं कबीर नहीं, देखिए बाबर हमारे देश में इस देश को लूटने के लिए आए थे। बाबर हमारे देश में आके हमारे देश की महिलाओं का बलात्कार, हमारे देश के लोगों का खून और हमारे देश के संपत्ति का लूटपाट किए थे। वो बाबर का जो खुद का लड़का था, जो हुमायूं कबीर, उसने बाबर के नाम पे कुछ नहीं किया। और भारत ही क्यों, आप मुस्लिम 56 कंट्री है, वहाँ पे बाबर के नाम पे एक बाथरूम तक नहीं है, तो भारत में मस्जिद क्यों बनेगा? भारत में इस मस्जिद का घोर विरोध है। देखिए, मस्जिद का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, आज़ादी के बाद हजारों मस्जिद हुआ है, लेकिन बाबर के नाम का विरोध है, क्योंकि बाबर ने हमारे भारत को लूट लिया है। बाबर ने हमारे भारत के ऐतिहासिक जितने जगह थे, देखिए मस्जिद बना उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद बना उस पर ऑब्जेक्शन। बहुत खाली जगह था, लेकिन मंदिरों को तोड़ के ही क्यों मस्जिद बनाया गया? आप अभी बहुत सारे मस्जिद को तोड़ कर देखेंगे, वहाँ हिंदुत्व और भगवान शिव का मूर्ति मिलेगा और कोई ना कोई हिंदुत्व का आस्था वहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत में क्या जगह की कमी थी, जमीन की कमी थी, जो मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाया गया? पिछले साल भी आप लोग यहाँ पे देखे थे 1 लाख गीता पाठ यहाँ पे हुआ था। इस बार भी 5 लाख गीता पाठ यहाँ पे होने जा रहा है। इस गीता पाठ में आपका यहाँ पे जो है मतलब बहुत पूरे पश्चिम बंगाल से हर तरफ से यहाँ पे आदमी आ रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यवस्था, यहाँ पे हर तरफ हर संस्था को अपना व्यवस्था दे रहे हैं। बहुत तरह से संस्था अपना जो योगदान है योगदान दे पा रहे हैं। जिसका जो योगदान रहता है अपने तरीके से अपना योगदान दे पा रहे हैं। बहुत तरह का, जैसे अपनी संस्था जो कोई जल पानी का, कोई अपना फल का, कोई फ्रूट्स का, कुछ का जो भी संस्था है अपना सब योगदान दे रहा है। यही जो हम लोग का सबसे बड़ा तो ये है, आज जो पश्चिम बंगाल जिस तरह से जो एक दुर्व्यवहार चल रही है, उस तरह से गीता पाठ जो हमारे यहाँ पे होगा, इससे एक नया संदेश जाएगा पूरे पश्चिम बंगाल में। जो हमारे पश्चिम बंगाल में एक संस्था पूरा भारत वर्ष में पश्चिम बंगाल का दुर्व्यवहार बदनाम हो रहा है, इस पर गीता पाठ से पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा सुनाम होगा। जो पश्चिम बंगाल में 5 लाख गीता पाठ एक साथ में गीता पाठ किया जा रहा है। चाहे रामनवमी हो, चाहे सनातन संस्कृति का कोई भी त्यौहार हो, यहाँ की सरकार इसको दबाने का कुचलने का काम करती है। लेकिन कल का जो आयोजन है, ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति वाले दिखा देंगे कि हिंदू धर्म जो हमेशा से एकता था और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में पहले से था, बस आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। और ये कल जो समागम है, ये आधिकारिक घोषणा भी कर देंगे। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस की विधायक है जो हमारे पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, और सरकार और उनकी पूरा मंत्रिमंडल उसको बैकअप दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आज जो मुद्दा सारे देश में, सारे विश्व में एक विध्वंस बन के चला, आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद था। कितने हमारे कार सेवकों ने आज हमारे इसी पश्चिम बंगाल के तो एक सगे माँ के 2 बेटे राम सत कोठारी अपनी जानी को, अपने प्राणों की आहुति दे दिए सवाई बाबरी नाम के लिए। आज फिर वही बंगाल में मतलब एक ममता
बनर्जी मतलब जो उनको खुद को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और एक दो सगे भाई को एक माँ की कोख से पैदा हुए जन्मे रामचंद्र कोठारी का कार सेवक के रूप में बदलाव दिए बाबरी नाम के, और वही बाबरी मस्जिद को वापस बंगाल में बनाने की मांग चली। उनके हुमायूं कबीर ने आज इनकी स्थापना भी किया, और एक भी प्रशासन वहाँ कुछ नहीं किया। क्यों? ये बंगाल को किसी और ले जाना चाह रहे हैं। इनकी मानसिकता क्या है? क्या बंगाल को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर देंगे? आज बंगाल में देखिए, भारत माता जय बोलने पे उनको तकलीफ होता है, लेकिन जय बांग्ला जो बांग्लादेश का स्लोगन है उनको बोलने में गौरवान्वित होते हैं। कि कहाँ जाना चाहता है बंगाल? ये हमारे सनातन धर्म को, पूरे बंगाल की बंगाली हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि उनकी सरकार और पश्चिम बंगाल जो माहौल है, ममता बनर्जी किस और ले जाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल का संस्कृति संस्कार ये नहीं था। पश्चिम बंगाल आप देखे होंगे हमेशा से यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की धरती रहा हुआ है। पश्चिम बंगाल ने हमेशा यहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिए हैं जो देश नहीं, बंगाल नहीं, पूरे विश्व को गौरवान्वित करने का काम किया है। लेकिन ममता दीदी अपने तुष्टीकरण रणनीति से उन महापुरुषों को, धरती को, महापुरुष जन्मभूमि को दूषित कर रही है। ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उनको बहुत जल्दी उनकी जो शांति प्रिय दूत हैं जो बांग्लादेश में उनके रहते हैं, जिसको दीदी के भाषा में बोलते हैं ना दुधालू गाय, उनको दुधालू गाय पास पश्चिम बंगाल की भोली भाली बंगाली जनता, सनातनी हिंदू उनको भेजने का काम करेगा। कल का जो सनातन हिंदू का उद्घोष है ये राष्ट्रीय उद्घोष है, और हम लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। भारत माता की जय। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये इतना बड़ा कार्यक्रम सनातन धर्म के लिए भागवत गीता पाठ का आयोजन जो किया गया है, ये भागवत कथा जो है कोई आम कथा नहीं है। ये यहाँ का जो अभी परिवर्तन चल रहा है, इस सिस्टम का परिवर्तन चल रहा है, उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ा ये संदेश है। गीता पाठ के जरिए ये बंगाल की धरती है, आज पूरे देश को ये पाठ, गीता पाठ ये दिखाएगा कि भगवान का आगमन, श्री कृष्ण भगवान का आगमन, महाभारत की शुरुआत यहाँ बंगाल की भूमि से हो चुकी। और अभी ये तो गीता पाठ के अलावा भी और भी कई सनातन धर्म के कार्य के लिए हमारे संत महात्मा और हमारे जितने भी समाज के श्रेष्ठ लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं। आज ब्रिगेड में कार्यक्रम है, ऐसा ना हो कल का ये जो भागवत कथा का, भागवत पाठ का कार्यक्रम है इतना सफल हो जाए कि इससे भी बड़ा ग्राउंड हम लोगों को लेना पड़े और करना पड़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को रोकता हूँ। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय।